Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. So आज की वीडियो है regarding MCQs on electricity and magnetism. उसमें भी particularly we will solve MCQs related to EM waves. And this video is useful for you if you are preparing for any of these exam, whether it be Master Cadre, Lecturer, PGT Physics, MSc Physics Entrance Exam, या फिर जो ATC की रिक्रूटमेंट चल रही है उसका जो सिलेबस है दैट ऑल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. सो ये MCQs उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होंगे. सो एक रिविजन कर लेते हैं पहले EM वेव्स की बिफोर स्टार्टिंग MCQs. जो EM वेव्स हैं दे आर प्रोपोगेटेड बाय द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जैसे यहाँ पर जो रेड वेव्स हैं दे आर इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ब्लू वेव्स आर इंडिकेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पर एक फैक्ट जो आपको क्लियर होना चाहिए दैट इज जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस तरीके से जो है वी कैन से जो EM वेव्स हैं दे आर सेल्फ प्रोपोगेटिंग वेव्स, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल. तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट लेट्स सी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग EM वेव्स. सो फर्स्ट इज EM waves are produced by accelerated or oscillating charge. ठीक है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए that they are produced by accelerated or oscillating charge. Second point is they travel with the speed of light. ठीक है. Third, EM waves are self-propagating. ये हमने देख ही लिया. ठीक है, because changing electric field is producing change in magnetic field and changing magnetic field is producing changing electric field. So this is how the EM wave is propagating, so it do not require any medium to propagate. So EM wave को हम कहेंगे it is self propagating. So next point देखो क्या है, EM waves are chargeless. तो chargeless हैं इसलिए they are not deflected by electric and magnetic field. So next point is EM waves obey superposition principle. उसके बाद है they propagate in the form of varying electric and magnetic field that are perpendicular to each other and to the direction of propagation. So जो EM waves हैं जो उसमें electric and magnetic field हैं they are perpendicular to each other and then they are perpendicular to the direction of propagation of wave. So जिस direction में wave advance कर रही है उसके भी perpendicular होंगे. So चलो अब शुरू करते हैं फिर हम MCQs. So first question is an EM wave is propagating in a medium with velocity v equal to vi cap. The instantaneous oscillating electric field of this EM wave is along y-axis. Then the direction of oscillating magnetic field of EM wave will be along. तो यहाँ पर हमें जो है EM wave की direction बता दी है in which direction it is propagating. Electric field की direction बता दी है and we need to identify that what will be the direction of oscillating magnetic field. So this formula we know that जो v है it is equal to means जो velocity of EM wave है that is equal to E cross B. तभी हमने बोला ना that जो electric field and magnetic field हैं they are perpendicular to each other and then perpendicular to the direction of propagation of wave. तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं because they are three mutually perpendicular vectors, so they can be written by this relation I cap equal to J cap cross K cap. अब हमें क्वेश्चन में दिया है जो v है दैट इज अलोंग आई कैप. सो जो E है दैट विल बी अलोंग J कैप, दैट इज ऑल्सो मैंशनड इन क्वेश्चन. सो जो B होगा दैट विल बी अलोंग K कैप मीन्स पॉजिटिव Z एक्सेस. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी आई, दैट इज ऑप्शन B प्लस Z डायरेक्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने इसको अलग अलग एग्जाम जितने भी हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए तो ये क्वेश्चन भी वहाँ पर प्रेजेंट था. सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. Out of the following options, which one can be used to produce a propagating electromagnetic wave? तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो EM wave है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा सोर्स है यहाँ पर. सो 4 ऑप्शंस यहाँ पर मेंशन्ड हैं. फर्स्ट वन इज़ अ चार्जलेस पार्टिकल, सेकेंड इज़ एन एक्सेलरेटिंग चार्ज, थर्ड इज़ अ चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, फोर्थ है अ स्टेशनरी चार्ज. तो करेक्ट ऑप्शन आप सबको पता ही होगी. ठीक है, हमने ये फैक्ट भी डिस्कस किया है एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो दैट जो EM वेव्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटिंग चार्ज या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है B. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेडिएशन ऑफ एनर्जी E
falls normally on a perfectly reflecting surface, the momentum transfer to surface is। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन ने पूछा है कि मोमेंटम ट्रांसफ़र कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे चेंज इन मोमेंटम को। तो चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। So ये मेन थिंग है दैट यू नीड टू नो द फार्मूला ऑफ मोमेंटम। सो P इज इक्वल टू E बाय C, दिस इज द फार्मूला ऑफ मोमेंटम। सो यहाँ पर जब उन्होंने बोला है चेंज इन मोमेंटम, सो E बाय C इज द फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम इज माइनस E बाय C, बिकॉज यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन फॉलिंग ऑन द सर्फेस है एंड देन रिफ्लेक्टेड बैक है, तो डायरेक्शन विल बी ओपोजिट। सो एक को हम पॉजिटिव लेंगे, फाइनल मोमेंटम विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड इनिशियल विल बी टेकन एज नेगेटिव। जब इसको ऐड करोगे इट विल बी इक्वल टू 2E बाय C। सो द मेन थिंग जब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा उसका मेन जो है यहाँ पर बेसिस ये है दैट यू नीड टू नो द फार्मूला ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वल टू E बाय C। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2E बाय C। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेरियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या है, द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ओवन heats up a food item containing water molecule most efficiently is। So जो माइक्रोवेव ओवन है दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट जो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स है दैट मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज फूड आइटम में जो वाटर मॉलिक्यूल फैट या फिर शुगर सब्सटेंस है जो भी प्रेजेंट होता है उसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव्स। और जब वो मैच कर जाती है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अगर हम उनकी एग्जांपल लें, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और जो उनकी वाइब्रेशंस हैं दैट प्रोड्यूस हीट एंड दिस इज हाउ द फूड आइटम गेट्स हीट अप। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन ए, माइक्रोवेव्स आर टाइप ऑफ EM वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ magnetic field to the amplitude of electric field for an electromagnetic wave propagating in vacuum is equal to। so यहाँ पर उन्होंने जो ratio of amplitude of magnetic field and to the amplitude of electric field उनकी जो ratio है वो पूछी है एंड उसको बोला गया है कि यहाँ पर जो 4 options हैं जिनकी ratio है that is equal to which option। first is reciprocal of the speed of light in vacuum, second है ratio of magnetic permeability to the electric susceptibility of vacuum, third is unity, fourth is the speed of light in vacuum। so let's understand इसको कैसे solve करना है हमने। so firstly you need to know the formula of the ratio of electric field to that of the magnetic field। so ये formula जो है E0 upon B0, E0 stands for the amplitude of electric field, B0 stands for the amplitude of magnetic field, और जिनकी रेशियो होती है that is equal to C which is the speed of light। so if you know this relation तो उसके बाद सिर्फ एक स्टेप ही रह गया है, बस ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा इसको रिवर्स कर दिया है कि हमें बताना है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बस इसका रेसिप्रोकल कर लो, B0 अपॉन E0 कर लो। सो B0 अपॉन E0 इज इक्वल टू 1/c हो जाएगा। सो 1/c स्टैंड्स फॉर रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज ऑप्शन ए। So option A is correct, reciprocal of speed of light in vacuum। So next question is the electric field and the magnetic field associated with an EM wave propagating along plus z axis can be represented by। So we know this thing, जो electric field है and magnetic field है in EM wave they are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave। So we can say these three are mutually perpendicular to each other। So I cap is equal to J cap cross K cap, but यहाँ पर उन्होंने बोला है जो velocity of EM wave है that is along Z axis। So we know this Z cap is equal to I cap cross J cap। Z cap stands for the velocity of propagation of EM wave। So E and B will be along, जो E है यहाँ पर that will be along I cap direction and B जो है that will be along the J cap direction। So the correct option for this question is option A। So next question is which of the following statement is false for the properties of EM waves। तो यहाँ पर हमें जो है properties of EM waves given है and we need to identify that which property is
इनकरेक्ट, कौन सी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर फॉल्स है, गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन्स द मैक्सिमा एंड द मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। Second is the energy in EM wave is divided equally between electric and magnetic vectors. Third है both electric and magnetic field vectors are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave. Fourth one is these waves do not require any material medium for propagation. सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो EM वेव्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, इनका मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस ही होता है एंड एट द सेम टाइम है। एज वी सेड दे ओबे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल विच इज़ इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या कहती है, द एनर्जी इन EM वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, इक्वली डिवाइड होती है। लास्ट ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, दैट दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो यहाँ पर जो हमें गलत ऑप्शन ढूंढ, सो दैट इज ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर बट वी नो दे आर perpendicular to each other. So that's why option C जो है that is false among all these properties. Next question is the velocity of electromagnetic radiation in a medium of permittivity epsilon naught and permeability mu naught is given by. So हमें वो वाली velocity of EM wave identify करना है which is related to medium और जो यहाँ पर epsilon naught है and mu naught है। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ EM वेव को इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला है जो वो करेक्ट है। द फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट इज C is equal to 1 upon square root of mu naught into epsilon naught. So when you will put the values of epsilon naught and mu naught, जो C है that will be equal to 3 into 10 raised power 8 meter per second which is the speed of light. तो तभी beginning में हमने fact लिखा था ना, जो velocity of EM wave है that is same as that of the speed of light which is 3 into 10 raised power 8 meter per second. So next question is, we consider the radiation emitted by the human body. Which of the following statement is true? So it's been said कि we know that जो human body है that also emit radiations. हमें ये बताना है कि वो radiations कौन सी होती हैं। First is the radiation emitted is in the infrared region. Second is the radiation is emitted only during the day. Third है the radiation is emitted during the summers and absorbed during the winters. Fourth, the radiation emitted lies in the ultraviolet region and hence is not visible. So अब हमें ये यहाँ पर बताना है कि जो ह्यूमन बॉडी से रेडिएशन एमिट होती हैं उनके लिए कौन सी ऑप्शन ट्रू है। सो जो रेडिएशन है एमिटेड बाय द ह्यूमन बॉडी दैट इज मोस्टली इन द इंफ्रारेड रीजन। सो जो ए ऑप्शन है रेडिएशन एमिटेड इज इन द इंफ्रारेड रीजन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनमें से कौन सी जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हैं। एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज एंड हीट रेज। सो वी नो दिस थिंग, जो EM वेव्स हैं दे आर हैविंग परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर गामा रेज जो हैं दे आर EM वेव्स, हीट रेज आर EM वेव्स। हीट रेज को हम माइक्रोवेव या इंफ्रारेड कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो बीटा रेज हैं, बीटा रेज दे आर नॉट EM वेव्स बिकॉज बीटा रेज क्या हैं, दे आर जस्ट अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। तो यहाँ पर कुछ भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, सो दैट्स वाई बीटा रेज आर नॉट EM वेव्स। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।